ہزاروں طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے یہ دنیا، اور ان سب لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ خاص ہیں، جبکہ خاص تو وقت ہوتا ہے، جو قدر نہیں کرتے ان سے چھین لیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ رزق ہو یا محبت۔ الفاظ کے دیوانے تو بہت ہیں، مگر تلاش اس کی ہے جو خاموشی کو پڑھ سکے۔ من چاہے در کی ٹھوکر انسان کا کیا حال کرتی ہے، یہ بس وہی جان سکتا ہے جسے ٹھوکر لگی ہو، خود کو بھی محسوس کیا کرے۔ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں، اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری، مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دوستی کی کشتی میں پہلا چھید غلط فہمی کا ہوتا ہے۔ خوبصورت نیتوں کے درخت پھل ضرور پاتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ بعض دفعہ ہم درست فیصلے کرتے ہیں اور بعض دفعہ ہمارے فیصلے ہمیں درست کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اب سے محبت کرتے ہوں ان کی محبت کا جواب محبت سے دیا کریں، ورنہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے کھو جاتے ہیں۔ محبت کی تذلیل کی جائے تو زندگی میں دوبارہ کبھی محبت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ رشتے کم بنائیں لیکن دل سے نبھائیں۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو بیٹھتے ہیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ سکون سمجھ تب آیا جب سجدے میں رو کر سر اٹھایا۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگ جائے تو سمجھ لے اعتبار کسی نے نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ چپ جاتی ہیں باتیں کبھی تو کبھی لہجے مار جاتے ہیں۔ یہ زندگی ہے جناب، یہاں ہم غیروں سے زیادہ اپنوں سے ہار جاتے ہیں۔ جو جتنا آپ کا ہے آپ بھی اس کے اتنے ہی رہیں۔ زیادہ دل کی غلامی میں عزت کی نیلامی ہو جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن سلوک ہے، ذلت نہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا ضرورت سے زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ رشتوں کی بھی تو عمر ہوتی ہے، کچھ تو مرنے تک ساتھ رہتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی، اور کچھ جیتے جی ہی مر جاتے ہیں۔ صرف انسان ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں۔ اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ زندگی تمہیں وہ نہیں دے گی جو تم چاہتے ہو، زندگی تم کو وہ دے گی جس کے تم قابل ہو۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں، بہت چالاک ہوتی ہے یہ زندگی، روز نئے کل کی امید دے کر عمر چھینتی رہتی ہے۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو پھر کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اعتبار کی ٹوٹی دہلیز پر جو بہت اپنے ہوں اکثر اپنے نہیں رہتے۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن قائم رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہمیں تمام بیماریوں اور مصیبتوں سے شفا اور نجات عطا فرما، آمین۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، بلکہ زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس لمحے اب زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں، آج نظر انداز کرنے والے کل کو طلبگار ضرور بنیں گے۔ شکر کو لازم پکڑ لو، غم دور اور نعمتیں قریب ہو جائیں گی۔
लोगों के लिए सब कुछ करके देखो, मगर जब उनका काम अब से पूरा हो जाए तो आपको ऐसे भूल जाएंगे जैसे कभी जानते ही नहीं थे। एक जानने वाला दूसरे जानने वाले से बेखबर हो सकता है। हम खुद को मेयार समझते हैं और दूसरों को मापते रहते हैं। बार बार आंसू साफ करने की बजाय एक बार हिम्मत करके अपनी जिंदगी को उनसे ही साफ कर दें जो उन आंसुओं की वजह बनते हैं। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर, ए इंसान। रब ने तेरे जैसे न जाने कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। लोगों के दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता। लोगों की आंखों में खटकने का अपना ही मजा है। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाए तो इस अल्लाह से चुपके बातें कर लिया करें। वो सब जानता है लेकिन अब से सुनना चाहता है। जिंदगी बहुत मीठी है अगर इसमें अपनी जबान का जहर ना इस्तेमाल करें। वक्त तो वक्त पर बदलता है, इंसान तो किसी भी वक्त बदल जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। महफिल थी दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने सदा खुश रहीं, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। रिश्तों की कदर कीजिए क्योंकि फिर तस्वीरें किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकती। तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जो मुअज्जिन की नहीं दिल की आजान पर पढ़ी जाती है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। जो शख्स जितना मुतमईन रहता है वो शख्स इतना ही ज्यादा दौलतमंद होता है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। ये शिकायत नहीं तजर्बा है। कदर करने वालों की कोई कदर नहीं करता। किसी ने फूल से पूछा, तुम हर किसी को खुशबू देते हो, आज तक तुम्हें क्या मिला? फूल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, लेना देना कारोबार है, जो देकर कुछ ना ले वही सच्चा प्यार है। वालिदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखें जितना अब दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेगी मगर फायदा मंद जरूर साबित होगी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर इस चीज के लिए जिसके लिए आपने कभी दुआ की थी और आज वो आपके पास मौजूद है। लोगों के साथ नेकी करते रहे, इस इंतजार में नहीं कि वो आपकी नेकी लौटाएंगे, बल्कि इस अकीदे के साथ कि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। दुनिया की सारी चीजें ठोकर लगने से टूट जाती है, मगर सिर्फ इंसान वो चीज है जो ठोकर लगने के बाद बनता है और फिर लोग बदलते नहीं हैं, बस उनकी जिंदगी में हमसे बेहतर लोग आ जाते हैं। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। ना जाने किस वक्त और कहां टूट जाए। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। तड़प हो अगर ढूंढने की तो कायनात का हर रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। ये इंसान तो कितना खुश किस्मत है। कुरान पाक में अल्लाह तुमसे बात करता है। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। बेहतरीन कुर्बानी आपके अंदर के जानवर की है। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, लेकिन हर तकलीफ से इंसान सीखता बहुत है। समझ ना आया जिंदगी तेरा फलसफा। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। शुगर की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि लोग मीठा खाना पीना तो किया, मीठा बोलना भी छोड़ गए हैं। मरना हम सजदे में चाहते हैं और नमाज हम पढ़ते नहीं। इज्जत पाने के लिए इज्जत करनी पड़ती है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए इनसे हमेशा के लिए नाराज ना हुआ करें। कोशिश करें कि जिंदगी में कभी किसी से कोई तवक्को ना रखें, क्योंकि तवक्कुआत का प्याला हमेशा ठोकरों की जद में रहता है। दुआ गमों के कुफुल ज़दा महल में आस की इकलौती खिड़की होती है। दूसरों की मदद किया करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता।
साफ नियत से मांगा जाए तो रब नसीब से बढ़ कर देता है। कुदरत के इम्तिहान हथौड़ों की तरह बार बार आप पे बरसते रहेंगे और हर ज़रब आपको मजबूत बनाएगी। खिज़ा के दौर में अहद बहार लेता हूं, कोई भी वक्त हो हंस के गुजार लेता हूं। उड़ जाएंगे तस्वीर से रंगों की तरह हम वक्त की टहनी पर परिंदों की तरह है। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो दोबारा वापस नहीं आते। नरमी से जवाब देना दूसरे के गुस्से को कम करता है। जब दौलत आने से किसी का अखलाक तबाह हो जाए तो समझ लो इसके ज़वाल का वक्त शुरू हो गया है। सच्चा इंसान जज्बाती जरूर होता है मगर मुनाफिक नहीं होता। खुशी के भी अपने अपने मतलब हैं। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था और दूसरा बीच कर। छोटी सी नेकी को छोटा समझकर नजरअंदाज ना करिए, ये जन्नत का दरवाजा खोलवा सकती है। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज्यादा बेहतर होता है। कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आजारी है। सीखा है मैंने जिंदगी से एक ये सबक भी, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले वो अपना ही सोचता है। जब अल्लाह आपको मुंतखब कर लेता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किसने मुस्तरद किया, वो रास्ते पहले ही बना देता है। लेकिन अता सिर्फ बेहतरीन वक्त पर करता है। फिक्र ए आखिरत वो चीज है जो इंसान को हर जगह हर शर से महफूज रख सकती है। लोग तुमसे जो चाहें छीन ले पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। हम किसी से लड़ते तब तक हैं जब तक हमें इस पर मान होता है, और जब ये मान टूट जाए तो हम भी अपनी हद में रहना सीख जाते हैं। बेशक अल्लाह जल जलालहू सब्र करने वालों के साथ है। दूसरों की खुशी का बाइस बनूं, अल्लाह तुम्हें खुशियों से नवाज देगा। इज्जत ए नफस जिससे जख्मी हो, धूप बेहतर है ऐसी छांव से। अल्लाह ताला सब्र शुक्र अदा करने वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हसद का कोई फायदा नहीं, बुलंदियां अल्लाह की जात देती है। कभी कभी इंसान को अपने मुखलिस होकर चलने पर भी रोना आता है। मुआफी से कुछ नहीं होता जनाब, जो बातें दिल को लग जाती हैं वो दिल से नहीं जाती। जो लोग अब से बिल्कुल भी लालच नहीं रखते वो लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। आंसू भी एक अता है मेरे रब की, और हिदायत का सफर आंसुओं से शुरू होता है। ए अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज हाथ फैलाए इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं है। मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पे जो यकीन कामिल है इसको देख, और हमारी हाजतों को पूरा कर। आमीन। जिस तरह घड़ी की सुई आगे पीछे करने से वक्त नहीं बदलता, इसी तरह गर्दन ऊंची या नीची करने से इंसान की औकात में कोई फर्क नहीं आता। ताल्लुक बरकरार रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो, ताल्लुक खत्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दो। ना जाने खूबसूरत जिंदगी को किसकी नजर लग गई। जो लोग रोज बात करते थे वो आज याद भी नहीं करते। ये सब मेरे रब की हिकमतें हैं। किसी को देकर आजमाता है और किसी से लेकर आजमाता है। सब्र और कद्र किसी के बस की बात नहीं होती। ये बस वही लोग कर सकते हैं जो आला ज़र्फ हों। पैसे की अमीरी तो आम है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। दुनिया को राजी करने की कोशिश में ना लगो, दुनिया ना किसी से खुश हुई है ना होगी। राजी करना है तो रब को करो जो एक आंसू और एक सजदे से मान जाता है। मेरी जिंदगी में कोई खास नहीं आता, वो क्या है कि मैं किसी को रास नहीं आता। किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ। फूल ने जवाब दिया कि तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। वो भी कितनी बेबसी का वक्त होगा जब लोग मेरे ऊपर मिट्टी फेंक कर सवाब हासिल करेंगे। गम की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना होते तो इंसान पत्थर ही रहता। छोटी सी जिंदगी ने बहुत बड़ा सबक दिया।
رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ زبانوں کے پیچھے مت بھاگو، لوگ تمہیں وہ کہانی نہیں بتائیں گے جس میں وہ غلط ہوں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ لوگ مطلب کی بات سمجھ لیتے ہیں لیکن بات کا مطلب نہیں سمجھتے۔